On our last lecture, in the last week, we were discussing the postulates of morality, and two I have discussed. The last third one, the existence of God, I have to discuss. So we will start with this, and the other people will join after between. So it doesn't matter. So the question arises: freedom of the will and immortality of soul. These two postulates have been connected by the Kant by the by interpreting the position of individual in the future life as well as the consequences of the action, which is according to the law of karma should be given to the same person, and that will be happen only when we will have faith in the immortality of the soul. Otherwise, the actions performed by the A will be by the person with B may not be reaped by me the consequences of that action, and in the next life the other person will reap, which is logically inconsistent and not acceptable. So they have Immanuel Kant has explained the need for having faith in the immortality of soul as which is based on the law of karma, and he has linked these concepts with the freedom of the will, because if freedom of the will is true and we performed freely, then whatever we have performed or will performed in the coming days, that will necessarily have consequences, and we have to bear those consequences which are the logical you can say results of our actions. And if the present life we don't have that consequences, then there is a necessity and a need to have these consequences in the next birth, but that will be logically possible if we have the same soul. If the soul is also changes like the body, then we will not reap the consequences of our actions. Is it clear? Is it clear now? Yes, ma'am. So, the third thing, the existence of God, that is required uh, because Kant says that there is a logical connection between the virtue and happy life, good life, happiness, and vice with the suffering. But we normally see that the virtuous peoples are the sufferer, while the vicious people are happy and enjoying their life. Then the question arises, what is the reason behind this? If virtue is logically related with the happiness, then the honest person or the virtuous person should enjoy the life, and the wicked persons should be should experience suffering. So Kant says that for this we have to go back to the law of karma, that there is a possibility that the virtuous person who are suffering in this present life may have performed vicious or the wrong actions in the past life. So, as a result of that wrong actions, they are suffering. And the vicious people, bad people
who are enjoying and having pleasure in the present life may have performed some good actions in the past life. So we should not be disturbed or go in the wrong direction having this scenario. But he says um, the issue that virtuous people will have pleasure and vicious people will get suffering. Who will decide? Who will manage all these things? That, or who will see, look after these process, that the good persons should be enjoyed and live a happy life, and the wrong persons, vicious persons, evil persons, bad persons should have the sufferings in their life. So for this, they can't accept it that there is a need of moral governor. Moral governor who maintain this system and will see that good person will get good results and the bad person should get bad results. So the existence of God is required the in the form of moral governor to maintain the moral order, ethical order in this world. So this is the third postulate, and all the three are interrelated. In the absence of one, other cannot be maintained. Okay? Is it okay, Chandan? Chandan? Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. Everything is okay. Okay. Thank you, Pandey. So the next thing is that these, for the morality, these postulates are very much required. And when we go with the topic of Indian ethics, as per our syllabi, then we will discuss the same concepts has been discussed in the Indian scenario also. Indian ethics is also based on these concepts. So there is no fundamental difference between the Eastern and Western ethics, just as there is a mild difference between the interpretation of Eastern thinkers and the Western thinkers. हिंदी में आकृति आपके लिए और प्रिया आपके लिए मैं ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि जो में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि नैतिकता की पूर्व मान्यताएं क्या हैं और इनका आपस में क्या संबंध है और क्यों, क्योंकि ये एक जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट ने दी थी, नैतिकता के लिए इन्हें अनिवार्य माना गया है, तो इनका आपस में क्या संबंध है और क्या आवश्यकता है इन चीजों को मानने की, स्वीकार करने की या इनमें विश्वास रखने की। और दूसरा महत्वपूर्ण दार्शनिक दृष्टि से कि इनका दार्शनिक औचित्य क्या है, क्यों इन्हें स्वीकार किया जाए नैतिकता की पूर्व मान्यताओं के रूप में। तो दो पे हम चर्चा कर चुके थे, एक था संकल्प की स्वतंत्रता, और जिसको मैं ब्रीफ में एक बार रिपीट कर रही हूँ कि संकल्प की स्वतंत्रता का अभिप्राय ये है चयन करने की स्वतंत्रता, और चयन करने की स्वतंत्रता हमको तभी प्राप्त हो सकेगी यदि हमारे सामने एक से अधिक विकल्प हों। यदि एक से अधिक विकल्प नहीं हुए तो हम उनमें से चयन नहीं कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि हमें चयन करने की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ द विल नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि नैतिकता के लिए संकल्प की स्वतंत्रता इसलिए आवश्यक है कि यदि हम कोई कर्म स्वतंत्र इच्छा से नहीं क्रियान्वित करते हैं तो
उसके लिए हमें नैतिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। नैतिक रूप से हम उसी कर्म के लिए आपको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं या किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं यदि उसने वो कर्म स्वतंत्र इच्छा से किया हो। दूसरा है आत्मा की अमरता। आत्मा की अमरता का अर्थ ये है, अभिप्राय ये है कि आत्मा, जिसे हम चेतना के लक्षण के माध्यम से जानते हैं, वो शरीर से पृथक अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और शरीर के समाप्त होने के बाद भी, देह के नष्ट हो जाने के बाद भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। यानी मृत्यु के उपरांत भी आत्मा नित्य रूप से, शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। प्रश्न ये हुआ कि क्यों आत्मा की अमरता में विश्वास रखना जरूरी है और उसका आधार क्या है। इस संदर्भ में दार्शनिकों का विचार है कि आत्मा की अमरता का जो आधार है वो कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि आप जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हो, उस कर्म का परिणाम अवश्य होता है और कर्म का परिणाम उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है जिसने वो कर्म किया होता है। यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर के साथ ही नष्ट हो जाती है, तो आजीवन पर्यंत हमने बहुत सारे जो कर्म किए हैं, ये जरूरी नहीं या ये संभव ही नहीं है कि मृत्यु के अंतिम क्षण तक हमने जो कर्म किए हों उनका परिणाम हमें इसी जीवन में प्राप्त हो गया हो। तो जो हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिनका परिणाम हमको नहीं मिला है, उनका परिणाम भोगने के लिए हमें भविष्य जीवन की, यानी कि पुनर्जन्म की आवश्यकता होती है। और पुनर्जन्म में भी यदि हमारी आत्मा समान रहती है तभी हमें हमारे कर्मों का फल मिल पाएगा। लेकिन यदि शरीर के नष्ट हो जाने के साथ ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है, तो हमने जो कर्म इस जीवन में किए हैं, ऐसा संभव है कि नेक्स्ट जीवन में, भविष्य जीवन में यदि वो आत्मा परिवर्तित हो गई तो कर्म तो हमने किए लेकिन परिणाम दूसरे को मिला, या कर्म दूसरे ने किए, परिणाम हमको मिला, जो कि तार्किक रूप से असंगत होगा, स्वीकार करने योग्य नहीं होगा। इसलिए आत्मा की अमरता में विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता को अनुभूत करने और उसके अनुरूप कार्य करने के बाद अनिवार्य रूप से उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तीसरा जो मान्यता है वो है ईश्वर का अस्तित्व। तो प्रश्न ये उठता है कि आत्मा की अमरता का आधार कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं। चलिए हम उनको स्वीकार भी कर लें, तो क्या ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है? क्या इसके लिए हमें एक अन्य सत्ता, ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करना जरूरी है? इस संदर्भ में कांट का विचार है कि सुख और सद्गुण में एक प्रकार का अनिवार्य संबंध है और दुख और दुर्गुण में अनिवार्य संबंध है। जो व्यक्ति सद्गुणी होता है उसे सुख मिलता है और जो दुर्गुणी व्यक्ति होता है उसे दुख मिलता है। लेकिन हमारा व्यवहारिक जीवन हमें ये दिखाता है कि हम प्रायः जीवन में देखते हैं कि जो लोग दुष्ट होते हैं, जो दुर्गुणी होते हैं, वो तो बहुत अच्छा आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, और जो सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, सच्चरित व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में कष्ट भोगते हैं। तो फिर इस अनिवार्य संबंध का क्या औचित्य है? इसको स्पष्ट करने के लिए कांट का कहना है कि ये ठीक है कि हमारे जीवन में हमें बहुत समय, बहुत घटनाओं में ऐसा दिखाई देता है
और अनेकों उदाहरण भी हमें ऐसे मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति सद्गुणी है वो कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, और जो दुखी व्यक्ति है, सॉरी, जो दुर्गुणी व्यक्ति है वो आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन कांट कहते हैं कि इससे हमें दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे हमारा पहले वाला आत्मा की अमरता और कर्म का सिद्धांत काम करता है। कि हो सकता है, ऐसी संभावना है कि जो व्यक्ति आज दुखी दिखाई दे रहा है, यद्यपि वो सद्गुणी है, तो ये दुख उसे उसके पिछले जन्मों के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहा हो, और जो व्यक्ति आज हमें सुखी दिखाई दे रहा है दुर्गुणी होने के बावजूद भी, वो उसके पिछले जन्म के अच्छे सत्कर्मों का परिणाम हो सकता है। तो इससे हमें उद्विग्न होने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न उठा कि तो ठीक है, यदि ये सफिशिएंट है, अपने आप में पर्याप्त है, तो ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता है। कांट का कहना है कि इस पूरे विश्व में इस बात का निर्धारण कौन करेगा कि इसने सही कर्म किए हैं, ये सत्यनिष्ठ है, ये सद्गुणी है और इसे सुख मिलना चाहिए, और कौन दुर्गुणी है और उसे कष्ट मिलना चाहिए। तो सदाचार और सुख के संबंध को स्थापित करने के लिए, सबके कर्मों के अनुरूप परिणाम देने के लिए, जगत की नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसे तत्व की आवश्यकता है जिसे हम नैतिक संरक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं, और ये नैतिक संरक्षक ईश्वर है। ईश्वर ही सद्गुणी व्यक्ति को सुख और दुर्गुणी व्यक्ति को दुख देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके बावजूद भी कि वो कर्म कैसे करते हैं, परिणाम तो आपको आपके ही कर्मों के अनुरूप मिलेगा, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं वो सत्कर्म है या वो असत कर्म है, मिथ्या कर्म है, गलत कर्म है, अनुचित कर्म है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार नैतिक संरक्षक को है, जिसे ईश्वर के रूप में कांट ने स्वीकार किया है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो कृति का प्रैक्टिकल रीजन है और कृति का रीजन है, इनमें प्रारंभ में आज कहीं पे भी जो है तार्किक रूप से स्वीकार करने में असमर्थ रहते हैं और थोड़ा सा संशय उनके मन में रहता है। लेकिन क्रिटिक ऑफ जजमेंट, जो उनकी तीसरी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसमें वो स्पष्ट रूप से ईश्वर के अस्तित्व को नैतिक संरक्षक, मॉरल गवर्नर के रूप में स्वीकार करते भी हैं और उसको तार्किक रूप से सत्य स्वीकार करते हैं। तो इस दृष्टि से नैतिकता की पूर्व मान्यताओं के लिए हमें, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि नैतिक और अनैतिक, इसके लिए नैतिक होने के लिए, नैतिक निर्णय देने के लिए हमें तीन चीजों को ध्यान में रखना होगा कि व्यक्ति ने कर्म अपनी स्वयं इच्छा से, संकल्प स्वतंत्र से किया है या नहीं किया है, किया है तो उसके कर्म का स्वरूप क्या है, और फिर उस कर्म के अनुरूप उसे परिणाम क्या मिला है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की अमरता और संकल्प स्वातंत्र, इन तीनों में एक तार्किक संबंध कांट ने दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है आकृति, आप लोगों को यदि यदि कोई चीज ना समझ में आ रही हो या कहीं पर कुछ शंका हो तो बिना झिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जो आपके टॉपिक है वो है आपका नेचर ऑफ एथिक्स, मॉरलिटी एंड अप्लाइड एथिक्स। नेचर ऑफ एथिक्स में शुरू में परिभाषाएं बता चुकी हैं और पूर्व मान्यताएं आपको ये करा दिया। अब नैतिकता का जो स्वरूप है वो नैतिक समस्याएं, मतलब कि नैतिकता के क्षेत्र में या नीति शास्त्र के क्षेत्र में
वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिन पे चर्चा करके हमें नीति शास्त्र का स्वरूप स्पष्ट होगा। और इस दृष्टि से जो है सबसे पहली जो समस्या है जो मैं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि वो अभी आपके प्रेजेंट टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको समझने में आपको मदद मिलेगी, वो है संकल्प स्वातंत्र नियतिवाद और उत्तरदायित्व की अवधारणा या समस्या, जिसे दूसरे शब्दों में संकल्प स्वातंत्र विवाद भी कहा जाता है। The notion of free will controversy is a fundamental problem of ethics, and while discussing this problem, we have to go through with the notion of freedom of the will, nature of determinism, types or kinds of determinism, as well as the concept of responsibility, and how these three concepts are interrelated, and what is the fundamental issue regarding the free will and determinism, and how we can decide the notion of responsibility. How do we judge the moral responsibility of a person who have performed the any particular course of action, and upon which we have to give ethical judgment. Okay, so first, freedom of the will I have explained you in detail, so there is no need to explain it further until and unless it is not clear to you. Okay, so the next thing is determinism. Determinism is the theory which is a scientific theory and have a philosophical interpretation which is based on the notion of causality. It means, according to the theory of determinism, every event has a cause. Every occurrences in this world has a cause, and consequently the effect arose in our day-to-day life. It believes that the freedom of the will is not true. Man is not free. Man cannot exercise freedom of the will because all his actions and all the events of this universe are predetermined by its causes. So it is the law of causality or theory of cause and effect which govern the nature of determinism. And this determinism is sometimes also known as fatalism, भाग्यवाद जिसे हम कहते हैं, means we are not free. Mind it, and you have to very clearly understand and remember that according to the determinist theory, according to the determinism, freedom of the will is false. There is no such term as freedom of the will. Man is not free to perform any particular course of action. All its actions are predetermined, and we are just performing according to the logical relation between the cause and effects. Effects means the actions which we perform, they are caused by previous circumstances, previous conditions, and we are not free to choose. This is the fundamental thing. And consequently, he says that man cannot be held morally responsible for
his or her action performed by the individuals. Three things. Freedom of the will is false, determinism is true, every action, every occurrences, every event of this universe is predetermined, and man cannot be held responsible for its actions performed, whether within this life or in the past life. So, three things are the key concepts of determinism. Similarly, freedom of the will also has three concepts. The first thing, man is by nature free and has freedom of the will. Freedom of the will means he has a power to choose between the right and wrong. So he is freedom of the will is true. First thing. Second thing, all his or her actions are not determined by any external forces. Third thing, that a man can be held responsible, morally responsible for the actions which we have performed in his or her life. Clear? So the freedom of the will, determinism, and responsibility. These three concepts are interrelated. If we chalk down on the blackboard, here is blackboard is not possible. So just write down in the first column, freedom of the will, in the second column, determinism, in the third column, responsibility. First, freedom of the will. First, serial number 1, you have to write, if freedom of the will is true, determinism will false, and there will be responsibility. And secondly, if freedom of the will is false, determinism will true, and there will be no responsibility. This is the logical structure. When we meet in the classroom, I will again, if you ask, I will give you the chart so that you have very much clear about the connectivity between all these three concepts. Now, if it is clear, if you have any questions, okay. Then the second thing is, what are the types of determinism? We have generally two types of determinism, hard determinism and soft determinism. Hard determinism says that every event has a cause, so there is no question arises for the freedom of the will. Soft determinism says that no doubt determinism is true, but there cannot be any external determining factor. Rather, the actions are, especially in the moral realm, they are self-deterministic in nature. So they are somehow tried to reconcile between the freedom and determinism. Therefore, they are known as the soft determinist thinkers. And the responsibility goes with all these notions. Soft determinists accept moral responsibility. Hard determinists don't accept moral responsibility. ओके हिंदी में आप समझ लीजिए कि जो नियतिवाद है, नियतिवाद जिसको एक दूसरा नाम आपको पुस्तकों में भाग्यवाद भी मिलता है, उसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म पूर्व निर्धारित होते हैं और ये सिद्धांत कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार
हमारे द्वारा किए गए कोई भी कार्य पूर्व निर्धारित है, उनका कोई ना कोई कारण है जिसके परिणाम स्वरूप हम ये कर्म कर रहे हैं। व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, यानी संकल्प की स्वतंत्र मिथ्या है और नियतिवाद सत्य है। यदि नियतिवाद सत्य है, यदि हम कर्म करने में स्वतंत्र ही नहीं हैं, तो हमें नैतिक रूप से हमारे द्वारा किए गए कर्मों के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिए उत्तरदायित्व का प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत कि यदि संकल्प की स्वतंत्रता है तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, हमारे कोई भी कर्म पूर्व निर्धारित नहीं है और इसलिए नियतिवाद मिथ्या है, संकल्प की स्वतंत्रता सत्य है और इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप हम नैतिक रूप से हमारी जवाबदेही बनती है। यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म के स्वरूप के आधार पर हमें या तो पुरस्कृत किया जाता है या दंडित किया जाता है। तो संकल्प की स्वतंत्रता यदि सत्य है तो नियतिवाद असत्य है और उत्तरदायित्व बनता है। यदि संकल्प की स्वतंत्रता मिथ्या है, असत्य है, तो नियतिवाद सत्य है और कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अब प्रश्न है कि नियतिवाद के कितने प्रकार हैं? नियतिवाद के मूल रूप से दो प्रकार हैं। एक को कठोर नियतिवाद कहा जाता है और एक को सॉफ्ट का मतलब ये कि एग्जैक्ट हिंदी में क्या कहेंगे, थोड़ा सा लिबरल, नरम नियतिवाद आप कह सकते हैं, कि जो संकल्प की स्वतंत्रता के कॉजल कनेक्शन मतलब कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित नियतिवाद को तो स्वीकार करता है, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में वो ये स्वीकार करता है कि व्यक्ति को कर्म करने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो ये भी मानता है कि हमारे जो कर्म हैं वो कार्य कारण नियम के अनुरूप होते हैं, इसलिए जैसे हम कर्म करेंगे उसका परिणाम उस कर्म के स्वरूप में जुड़ा हुआ है। तो जो कठोर नियतिवादी हैं वो जो है वो प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो नैतिकता का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या दर्शन का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में उनका मूल सिद्धांत है कि विश्व में घटने वाली प्रत्येक घटना है वो पूर्व निर्धारित है, उस कोई भी बदलाव करने का विकल्प हमारे पास नहीं है। हम न तो सामाजिक दृष्टि से, न वैज्ञानिक से, न दार्शनिक से और न ही न्याय दृष्टि से उसके लिए उनके क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन जो जिसमें तो मौलिक नाम आता है, ये कैंप का नाम आता है, तो ये इस बात को करते हैं कि घटना का कोई कारण होता है तो हम कर्म करें उसका भी कर तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो धर्म की बाधित नहीं करता है, व्यक्ति करने में होता है और नैतिक है मतलब इसलिए उत्तरदायित्व ठहराना भी है। इन नरमवादी दार्शनिकों में स्पेशली मौलिक जो है एक रूप में की है या करता है, जिसके उनका एक बहुत है है और जो विवाद को एक करता है। तो पहले जो है वो हो गई शास्त्र की स्वतंत्र और निवाद विवाद
उत्तरदायित्व की अवधारणा उस दंड और पुरस्कार, दंड और विधान का विधान एक पूरा अलग विषय नीति शास्त्र का, जिसमें हम इस बात का निर्णय करते हैं कि किस प्रकार नैतिक जिम्मेदारी है, तो कर्म उसके अनुसार उसे या तो पुरस्कार दिया जाए या दिया जाए। तो पुरस्कार भिन्न प्रकार के हो सकते और भी अपने अलग नैतिक हैं जो हमें दिए वगैरह में होंगे, उस में हम उल्लेख करेंगे। मुख्य सिद्धांत है जिसको निवर्तन का सिद्धांत जो है वो प्रकट का सिद्धांत है, और तीसरा सुधार का सिद्धांत है। First is known as the attributive theory, जिसे प्रतिकार का सिद्धांत कहता है। दूसरा है डेटा थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसे प्रवर्तन का सिद्धांत कहा जाता है हिंदी में। और तीसरा है रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जिसे सुधार का सिद्धांत कहा जाता है। और उसके अलग अलग चर्चाएं हैं, उसमें अलग दार्शनिकों के विचार हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझना है कि संकल्प की स्वतंत्रता, नियतिवाद, उत्तरदायित्व की अवधारणा और दंड और पुरस्कार की अवधारणा है, ये सभी परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, और इनको समझे बिना हम नीति शास्त्र के स्वरूप को समझने में असमर्थ होंगे। ठीक है। इसके बाद जो मुख्य चीज है और जिसपे मेटा एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स, यानी अधिनीति शास्त्र और अप्लाइड एथिक्स जो आपने चुना है, उसका पूरा दामोदर जो है वो उस अवधारणा पर निर्भर करता है, जिसको कहते हैं नेचर ऑफ एथिकल जजमेंट। What is the nature of ethical judgment? So, you have already studied that as per analytical ethics or advanced ethics or meta ethics, these are the three different names for this branch. The philosophers, metaethicians have tried to explain the linguistic analysis of ethical judgment, nature of ethical judgment, meaning, correct meaning of ethical terms, and the method for the verification of ethical judgment. But this nature of ethical judgment, as in the first lecture I have told you that there are various theories regarding the nature of ethical judgment, and these theories are namely teleological theories, हिंदी में प्रयोजन मूलक सिद्धांत, जिसका उदाहरण आपको हेडोनिज्म, सुखवाद के सिद्धांत में मिलता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और दूसरा है कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट थ्योरी, परिणामवादी सिद्धांत, जिसका प्रमुख उदाहरण जो है वो उपयोगितावादी दर्शन है। और तीसरा है डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, जिसको परिणाम निरपेक्ष सिद्धांत कहा जाता है। ये इसका उदाहरण आपको कांट के नीति शास्त्र में मिलता है। तो नैतिक निर्णय हम जब व्यवहारिक नीति शास्त्र या अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख समस्या यही आती है कि हम किस दृष्टिकोण से नैतिक कर्मों का या मानवीय कर्मों का आकलन करें, और उसके लिए कौन कौन से आधारभूत सिद्धांत हैं, कौन कौन से आधारभूत नियम हैं, और वो कौन से आधारभूत मूल्य हैं
जिनको ध्यान में रखते हुए हमें किसी कर्म को नैतिक या अनैतिक की श्रेणी में रखना है। नैतिक निर्णय अपने आप में किसी कर्म के ऊपर नैतिक निर्णय देना है कि वो कर्म नैतिक है या अनैतिक है, और इसको करने के लिए हमें नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों और साथ ही साथ नैतिक नियमों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इन सब का ज्ञान हमें जो है वो नैतिक निर्णयों के स्वरूप का को ध्यान में रखकर मिलता है। नैतिक निर्णय के दो मुख्य अंग हैं जिनको ध्यान में रख करके नैतिक निर्णय दिया जाता है या लिया जाता है। पहला तो है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन भी आप कह सकते हैं कि दैट इज द रॉन्ग वर्ड, मोटिवेशन, कि कर्म की प्रेरणा, यानी हम किस मोटिव से, किस इच्छा को ध्यान में रखकर हम कर्म संपादित करते हैं। और दूसरा कि कर्म का फल क्या है, परिणाम क्या है। यदि हम परिणाम को ध्यान में रखकर करते हैं तो हम परिणाम सापेक्ष या जिसको कहना चाहेंगे कि परिणामवादी या परिणाम सापेक्षतावादी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। यदि हम उस कर्म करने की प्रेरणा को ध्यान में रखकर, लक्ष्य को ध्यान में रख करके हम कर्म करते हैं तो वो हमारा जो है वो टीलियोलॉजिकल थ्योरी है, प्रयोजनवादी, जिसका उदाहरण जैसे सुखवाद। सुखवाद क्या कहता है कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है, इसलिए हमें सदैव ऐसे कर्म करना चाहिए जिनका जो हमें सुख प्राप्त करने में सहायक हो। तो वो लक्ष्य मतलब एम ओरिएंटेड है, पर्पज ओरिएंटेड है, पर्पजिव है, टीलियोलॉजिकल है। और जो परिणामवादी फलवादी दार्शनिक हैं जैसे उपयोगितावादी दार्शनिक, वो ये कहते हैं कि जिस कर्म का परिणाम समाज और व्यक्ति के लिए उपयोगी हो, उनको मदद करने वाला हो, उनके रोजमर्रा के जीवन में उनके लिए सहायक हो, प्रगति या विकासशील हो, उसी परिणाम के आधार पर हमें नैतिक निर्णय दिया जाना चाहिए और कर्म का निर्णय भी करना चाहिए कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। इन दोनों अंगों के विपरीत कांट एक ऐसे रिवॉल्यूशनरी थिंकर हैं, क्रांतिकारी चिंतक हैं, जो कोर फिलोसफी यानी कि अनुचिंतनात्मक स्पेकुलेटिव फिलोसफी में तो मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी के फील्ड में तो चर्चित हैं ही, नीति शास्त्र के क्षेत्र में भी बहुत ही चर्चित सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने किया है और उनके सिद्धांत को परिणाम निरपेक्ष नैतिकता वाद का नाम दिया जाता है, जो ये कहते हैं कि नैतिक निर्णय हमेशा कर्तव्य की अवधारणा को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए या दिए जाने चाहिए। किसी व्यक्ति ने कर्म किस इच्छा से किया है ये मायने नहीं रखता है, किसी व्यक्ति ने कर्म जो है वो किस उस कर्म का परिणाम क्या है ये मायने नहीं रखता है। मायना या अर्थ या महत्व ये रखता है कि उसने कर्म जो है वो कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर किया है या नहीं। अगर कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म किया है तो वो कर्म नैतिक है। यदि उसने फल या परिणाम की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म किया है, यदि उसने किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर कर्म किया है, तो उसे हम नैतिक कर्म नहीं कह सकते हैं। तो ये नीति शास्त्र नैतिक निर्णयों के स्वरूप का मूल सार तत्व है और 3 प्रमुख सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद एक तीसरी प्रमुख समस्या आती है जो इसी समस्या से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार कि नैतिक इवोल्यूशन ऑफ कंडक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी व्यक्ति के आचरण और चरित्र का मूल्यांकन करना नीति शास्त्र की एक
एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर संपूर्ण नीति शास्त्र का ढांचा ही आधारित है। और ये हम किसके आधार पर इसको स्वीकार कर सकते हैं? इसका निर्णय करने के लिए हमें नैतिक मूल्यों की जानकारी होना जरूरी है, नैतिक सिद्धांतों की जानकारी होना जरूरी है, नैतिक मानदंडों का ज्ञान होना जरूरी है। तभी हम किसी व्यक्ति के चरित्र और आचरण का आकलन कर सकते हैं। तो नीति शास्त्र का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ही, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही है कि इट इज ए नॉर्मेटिव और वैल्यू बेस्ड स्टडी ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। ये मानव आचरण का एक मूल्यपरक अध्ययन है। ये मनुष्य जो भी कर्म करता है उसको उसका आकलन, उसका मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर करता है कि वो कौन से मूल्य हैं जिनको ध्यान में रख करके ये कर्म किया गया है या ये कर्म उन मूल्यों के विपरीत है। इसके बाद आती है कि हम हाउ टू एस्टेब्लिश द एथिकल प्रिंसिपल्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, कि नैतिक नियमों की स्थापना कैसे की जाए, नैतिक मानदंडों का विधान किस प्रकार से किया जाए। तो इस संदर्भ में जो है फिर आता है, क्योंकि नीति शास्त्र मूल्यपरक विज्ञान है, तो नीति शास्त्र मूल्यों के आधार पर सामाजिक तात्कालिक मतलब जो संबंधित समाज है उसकी सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कुछ नैतिक मानदंडों का विधान करता है, कुछ नैतिक नियमों का प्रावधान करता है और कुछ आधारभूत, जिन्हें हम कहते हैं शाश्वत मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य और इंग्लिश में इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं, और कुछ जो है टेम्परेरी वैल्यूज का निर्धारण करता है जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। इस तरह से नीति शास्त्र की एक अहम समस्या नैतिक सिद्धांतों, नैतिक नियमों और नैतिक मानदंडों की स्थापना करना भी है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण समस्या है नोशन ऑफ एथिकल बाउंडेशन और कंपल्शन। नैतिक बाध्यता का स्वरूप क्या, किसे हम नैतिक बाध्यता कहते हैं? तो नैतिक बाध्यता क्या है? मॉरल कंपल्शन। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम कुछ आंतरिक या बाह्य, दोनों संभव हैं, दोनों की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, या तो कोई बाह्य बाध्यता हो, अंकुश हो हमारे ऊपर, या कुछ आंतरिक नैतिक अंकुश हो जिसके कारण जो है वो हम उचित कर्म करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं और अनुचित कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि यदि नीति शास्त्र का नियम क्या है कि वर्च्यू क्या है, नॉन वायलेंस इज अ वर्च्यू एज वेल एज ए वैल्यू। अब अहिंसा के अनुसार कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा कई प्रकार से की जा सकती है, शारीरिक भी की जा सकती है, मानसिक भी की जा सकती है और वाचिक भी, फिजिकल, मेंटल एंड ओरल, वोकल। तो इन तीनों प्रकार की हिंसाओं का निषेध नीति शास्त्र करता है। लेकिन एक उदाहरण है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आतंकवादियों से बचने के लिए जो है आपके पास आता है और आपकी कनपटी पर बंदूक रख के दूसरे उस निसहाय व्यक्ति या जो कहना चाहिए कि निरपराध व्यक्ति है, उस व्यक्ति को की हत्या करने के लिए आपको आदेश देता है। अब आपके सामने नैतिक विवाद है
कि नैतिक नियमों के अनुसार तो ये है कि आपको उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप इस समय बाध्य हैं कि यदि आप उसकी हत्या नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति आपकी हत्या कर देगा, आतंकवादी। तो इस विवाद में आप क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति की हत्या करेंगे या स्वयं की हत्या होने देंगे? तो दोनों तरह की पॉसिबिलिटी, जो स्ट्रॉन्ग मॉरल डिटर्मिनिस्ट हैं वो तो ये कहेंगे कि नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में हत्या नहीं करूंगा चाहे मेरी खुद की जान चली जाए। लेकिन इतने फर्म डिटर्मिनेशन के लोग, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल एंड इम्पल्सिव मैन, तो हम जो है परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेते हैं और कहते हैं ना कि जान सबको प्यारी होती है, तो हम अपनी जान बचाने के लिए उसको शूट कर देते हैं। तो दोनों तरह के एक्शंस हैं। इनमें किस एक्शन को हम नैतिक कहेंगे, किसको अनैतिक कहेंगे, इसका निर्धारण जो है वो इस बात पे भी निर्भर करेगा कि हमने क्या सोच के कर्म किया, कर्म का परिणाम क्या हुआ, और कर्म करने में हम स्वतंत्र थे या हमारे पास कोई बाह्य या आंतरिक दबाव या अंकुश था, जिसकी चर्चा आपने मिलो बेंथा में पढ़ी होगी। सैंक्शंस, मॉरल सैंक्शंस, नैतिक बाध्यताएं, तो वो बाह्य भी होती हैं और आंतरिक भी होती हैं। बाह्य जो है वो प्राकृतिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती हैं, राजनीतिक भी होती हैं और धार्मिक भी होती हैं। जबकि आंतरिक बाधाएं जो हैं वो स्वयं आपके मानसिक स्तर, आपकी समझ, आपकी बौद्धिक और व्यवहारिक योग्यता पर निर्भर करती है। तो इसके अनुरूप जो है हम कई बार परिस्थितियों के कारण, कई बार अपनी आंतरिक मान्यताओं, अपने विचारों के कारण बाध्य हो जाते हैं किसी कर्म को करने के लिए या ना करने के लिए। तो नैतिक बाध्यता भी एक का विश्लेषण भी नीति शास्त्र के स्वरूप के अंतर्गत आता है और नीति शास्त्र की एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। बस मैं फिनिश कर रही हूँ। जस्ट रिवार्ड पनिशमेंट मैंने आपको बता दिया है। एक लाइन है मॉरल कॉन्शियसनेस, इसको आप लोग पुस्तकों में डिटेल में पढ़िएगा, बीए में पढ़ाया जाता है। नैतिक चेतना कि प्रत्येक व्यक्ति में moral action, every individual has is a conscious being, and being a conscious being, it is a well known fact that an individual very well know, able to know what he or she is doing, what type of action he or she is performing. And moral consciousness means to know about the notions of right and wrong, what is right, what's wrong, what is good, what is bad, what is our duty, what is virtue, what is value, what we ought to do, what we ought not to do. So moral consciousness is the ability which is inherent in each and every individual, and the necessity and the need is to just with your mind, your consciousness, and act accordingly. नैतिक चेतना प्रत्येक व्यक्ति में अनिवार्य रूप से पाई जाती है, स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो अच्छा हो या बुरा किसी भी कर्म को करते समय इस बात से पूरी तरह अवगत होता है, उसे ज्ञात होता है कि क्या कर्म सही है और क्या कर्म गलत है। तो नैतिक उचित अनुचित, शुभ अशुभ, कर्तव्य, चाहिए, सद्गुण, दुर्गुण और मूल्यों, इन सब के का मूलभूत ज्ञान ही नैतिक चेतना कहलाता है। तो ये सब कुछ प्रमुख इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का रिलेशन, इंडिविजुअल एंड स्टेट का रिलेशन वगैरह वगैरह, लेकिन प्रमुख समस्याएं जिनका आप का संबंध, जिसका अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के साथ संबंध है, उन सारी महत्वपूर्ण समस्याओं पर मैंने चर्चा करी है, जो मोटे तौर पर आपको नेचर ऑफ एथिक्स के विषय में जानकारी देते हैं। तो अवर फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एथिक्स, नाउ फिनिश्ड हियर। ओके,
ठीक है, नीति शास्त्र का स्वरूप पे मैंने आपको डिटेल में चर्चा कर दी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मॉरलिटी, कि मॉरलिटी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और मॉरलिटी और नैतिकता में क्या अंतर है। फिर नीति शास्त्र, नैतिकता और अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र ये किस प्रकार संबंधित हैं, और अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के में किस तरह के क्षेत्रों में हम चर्चा करते हैं, किस तरह के विषय वस्तु है, उस पे चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, प्लीज आस्क बिफोर द क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू। Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome and have a good day.